एडमिशन एडमिशन की वीडियो Hello, Assalamu alaikum. Good evening to Assalamu alaikum and good evening everyone. Everyone. I'm Yusra Parveen, I'm Yusra Parveen, a third year a third year a third year student of Energy and Environment a third Engineering student Department of in Energy Dawood and Environment University. Engineering Department in Dawood University. Welcome you all in today's admission Welcome guidance you all in webinar. today's admission guidance webinar. The main The objective main of this objective of webinar this is webinar is to instruct or to instruct demonstrate or you demonstrate and guide you you and guide you and give you the guidance and in give you the particular guidance in in the field particular of Energy and in the Environment field of Energy Engineering and Department Environment Engineering and Department Environmental Sciences and BS Environmental program. Sciences BS program. इसको चेक करें इसको चेक करें the sound is sound is working good echo आ रहा echo आ रहा Is it fine now? Is it fine now? The main objective of this webinar is to instruct or demonstrate you and give you the guidance, in particular in the field of Energy and Environmental Engineering and Environmental Sciences BS program. For this, we have specialists, chairperson, alumni, and students. So, without any further delay, I would like to introduce my first guest, Dr. Ayaz Ali Shah. He is the head of the Department of Energy and Environment. He has done his master's and bachelor's in Mehran University and PhD in University of Aalborg, Denmark. Thank you so much, sir, for joining us today. Next, we have Sir Azizullah Channa Sahab. He is the environmentalist and assistant professor in the Department of Environmental Engineering in Mehran University, Jamshoro. We are honored to have you with us today. Thank you for joining us. Thank you From for alumni, we have
From alumni, we have Sir Mir Mohammad Jamali Sahab. He is from 13 batch of Energy and Environment Department in Dawood University, and right now he is an assistant manager in K Electric organization. Thank you so much, sir, for joining us. From a student, we have Mohammad Danyal. He is a third year student of Energy and Environment Department. Thank you. So, सबसे पहले हम अपने सेशन का आगाज करते हैं। सर अयाज आपसे स्टार्ट करेंगे कि जैसा कि आज हम जो है एनर्जी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के बारे में और एनवायरमेंटल पीएस प्रोग्राम्स की फील्ड को एक्सप्लोर करेंगे। काइंडली आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें इन दोनों फील्ड्स का। थैंक यू। Assalamualaikum everyone, all my listeners and viewers. First of all, I would like to thank Yusra Shoaib for organizing this interesting webinar. So, hats off to you. And then I would like to welcome my colleague, my friend, Mr. Azizullah Janasa, who has spared his time for this webinar. And then I would like to thank my friend, also my student, Mr. Mir Mohammad Jamali from K Electric. So thank you all of you for making this happen today. So let's coming to your question, Yusra. I think I would like to get mixed with Urdu and English language so that our viewers can catch up in a perfect manner. सो आपके सवाल की तरफ आते हैं कि आपने कहा कि एनर्जी और एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले मैं ये कह रहा था कि डिपार्टमेंट को बताने से पहले मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊं। Our university is basically the Dawood University. It is an engineering university which was established in 1964. 1964 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इनिशियली हमारे पास 4 डिपार्टमेंट्स यहाँ पर होते थे: केमिकल, इंडस्ट्रियल, मेटलर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स। And these were the programs at the time. These were not taught in any kind of other university in Pakistan. So it was a new concept at the time. Then slowly, gradually, our university was progressing. In 1970s, somewhere around the beginning of 1970s, Dawood University started a new program by the name of architecture and planning. And then slowly go on. फिर हमारे पास तकरीबन 2011-2012 में 4 न्यू प्रोग्राम्स का इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें एनर्जी और एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग एक डिपार्टमेंट था। 3 और जो थे उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ: टेलीकॉम इंजीनियरिंग, टेलीकॉम कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, इसके अलावा पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग और टेलीकॉम, कंप्यूटर सिस्टम, टेलीकॉम और एनर्जी हमारे पास खुद है अपना। ठीक है। सो अब आ जाते हैं एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट के हवाले से। सो इट वाज स्टार्टेड इन 2011 एंड सिंस देन आवर 8 बैचेस हैव बीन सक्सेसफुली ग्रेजुएटेड। ठीक है बेटा। इसका मोटिव क्या था इसको लॉन्च करने का, एनर्जी और एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग को? बेसिकली इट इज बेसिकली अ मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग सिस्टम कहें या इसको इंजीनियरिंग डिसिप्लिन कहें आप, कि इसके अंदर हमारे पास तकरीबन मेजर जितनी भी मदर फील्ड्स इंजीनियरिंग की, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंक्लूडिंग केमिकल, उनके सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं इन ऑर्डर टू कोप अप द प्रॉब्लम्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट टुगेदर। कि हमारे पास जो बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास जितनी भी आजकल स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है वो कन्वेंशनल सोर्सेज के साथ से की जाती है। यहाँ कोयला हो गया आपके पास, गैस हो गया या ऑयल हो गया। ठीक है। तो नो डाउट यानी 60 to 65% जो है हमारे पास कन्वेंशनल रिसोर्सेज यानी फॉसिल फ्यूल्स के साथ की जाती है। बाकी जो 30 to 35% है वो हमारा क्या कहते हैं हाइडल एनर्जी हमारे पास। तो 60 to 65% जो एनर्जी है हमारे पास फॉसिल फ्यूल से क्रिएट की जाती है। तो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से हमारे पास जो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट होता है। तो ना सिर्फ ये हमारे पास रीजनल इशू है, ये तो एक ग्लोबल इशू है। बाहर की दुनिया में, पाकिस्तान से बाहर, ये कॉन्सेप्ट हमसे ज़्यादा पुराना है एनर्जी और एनवायरनमेंट का। वहाँ पे बाहर मुल्क जैसे यूरोप की बात कर लें या आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर लें, उन लोगों ने 1970s से इस प्रोग्राम को लॉन्च करना शुरू कर दिया था, क्योंकि हमारे पास अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारे पास इन्वायरमेंटल कंसर्न्स आना शुरू हो गए थे उस टाइम पे।
तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये 1990s में 1995 में हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में ये अवेयरनेस आने लगी और लोगों को बावर करवाया गया कि यार अगर हम इस एनवायरनमेंट को सेव नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी तो हमारे लिए और हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए खतरा लाहिक हो सकता है। तो ये एक बेसिक मोटिव था पाकिस्तान के अंदर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग को लॉन्च करने का, और दाऊद यूनिवर्सिटी में भी यही एक हमारे पास मोटिव था। इससे पहले हमारे पास मेहरान यूनिवर्सिटी इसको लॉन्च कर चुकी थी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को बैचलर्स लेवल पे, मास्टर्स तो पहले से वहाँ पे हो रही थी। मेहरान यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया था 2000 आई थिंक 8-9 के अराउंड। कायदे अवाम ने 2005 में ये इनिशिएटिव लिया था, तो 5-6 साल के बाद हमने भी ये इनिशिएटिव लिया और इस प्रोग्राम को शुरू किया। जी उसरा। सर, जैसा कि अब जो है न्यू फील्ड इंट्रोड्यूस कराई गई है इसी साल, एनवायरमेंटल बीएस प्रोग्राम, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका इंट्रोडक्शन दे दें। बिल्कुल, बीएस एनवायरमेंटल साइंसेस प्रोग्राम हम लॉन्च करवाने जा रहे हैं। द एडमिशंस आर ओपन एंड होपफुली इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम अक्टूबर। ठीक है। बेसिक मोटिवेशन इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का ये है कि हमारे पास इंजीनियरिंग सेक्टर में जो हमारे पास बच्चे आते हैं दे आर स्पेसिफिकली फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, यानी जो इंटरमीडिएट या एफएससी करके आते हैं इंजीनियरिंग पर्सपेक्ट में, प्री इंजीनियरिंग साइड से आते हैं। मगर इन्वायरमेंटल साइंसेस का हमारे पास एक ये एडवांटेज है कि वो बच्चे जो हमारे पास मेडिकल साइड से या कॉमर्स साइड से या कंप्यूटर साइंस से जो हमारे पास इंटरमीडिएट या एफएससी करके आते हैं, दे कैन आल्सो बी एलिजिबल इन अप्लाइंग इन बीएस एनवायरमेंटल साइंस सिस्टम। ठीक है। और दूसरी बात ये कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस को मैं अगर इस तरह से डिफरेंशिएट करूं कि एनवायरमेंटल साइंस एक ना बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखती है इन टर्म्स ऑफ स्कोप के हवाले से, कि मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन को अगर आप सर अजीजुल्लाह के पास ले जाएंगे वो उसका और अच्छा आंसर देंगे आपको, क्योंकि अगर मैं इसमें बोलूंगा तो मेरे को 10 मिनट और लग जाएंगे इसमें बात करने में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आप सर अजीजुल्लाह से करें सो वी कैन आंसर यू इन अ गुड वे। ओके सर, सर अजीजुल्लाह प्लीज आप इस क्वेश्चन के बारे में बता दें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल साइंस? Thank you very much. Actually, there isn't a big difference. The difference is that is of engineering and science. In environmental science, the students normally study about the phenomena and the processes and techniques and theories. सर थोड़ी सी And आवाज बढ़ा दें सर, साईं अजीजुल्लाह साहब। जी सर। Now is it okay? साईं बिल्कुल। ठीक है सर। तो इंजीनियरिंग और साइंस की बात कर रहे थे, तो डिफरेंस सिर्फ आता है वर्ड का, साइंस का और इंजीनियरिंग का। जहाँ पे वर्ड इंजीनियरिंग आता है, देयर इज़ अ डिज़ाइन। जैसे इफ़ यू आर a student of environmental engineering, you must have studied about wastewater treatment design, air pollution control design, and solid waste management and its system design. So ये चीज़ें वो नहीं पढ़ते। और in terms of biological things or ecology or kind of the क्या कहते हैं उनको, fauna flora और ऐसी सर्वेज वगैरह, वो एनवायरमेंटल साइंस वाले कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग. So that is a minute difference. You can also say the engineering is also a part of environmental science, and the function is only that whatsoever the phenomena found by the scientists, that it's a role of engineers to imply in the society. जी बेटा, is it clear? यस सर, थैंक यू सर। मैं आप ही से ही कंटिन्यू करना चाहूंगी आगे भी। लाइक बीइंग एन एनवायरमेंटलिस्ट, हाउ यू डिफाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट, environmental studies, and what do you think what environmentalist role worldwide? First of all, we need to understand what is environment. So every planet has its own environment. The sun definitely has environment, but just like you said, the moon has environment, Mars, Mercury, and Jupiter. Everybody has environment. But fortunately, the environment we have that supports the life. The environment, the abiotic environment that supports the life and that supports the human existence.
So environment is very much essential. Its protection is definitely essential because we only have one Earth. So and in the ratio of oxygen we breathe, or we need water at certain quality. We cannot drink every water. We cannot drink the ocean water directly. We cannot drink highly saline groundwater. We have certain acceptance to the water, so for especially in terms of quality. So environment is very important. So why studies in important? So after that there was an industrial revolution in 19th century, in late 19th century, and it continued to 20th century. So the people found that in earlier times it was said that in any town, if you see the black smoke is coming out, the streets are dirty, that city was considered to be more wealthy. So people used to migrate towards that city because there are the factories, they are working and they're producing jobs, and they're producing the economy. But later on, it was found that those pollution has deteriorated human health, environment, and caused severe I think threats. there's some internet connection. Can you listen to me? Yes, sir, we can listen to you. So these changes have seriously affected the environment and especially the human health. Why we care about environment? Because we care about human health. So that's why studies are important. And what is done at the global level? Globally, in Pakistan, this field was recently launched. So as I'm graduated from Iran University, so my batch was 2009, and it was the first batch of undergraduate throughout the Pakistan. At same time, it was launched by other universities too, but it was the first time. But it has already started in foreign countries, and the people they have developed a very good system. So they especially if you are talking about the developed countries, they are highly concerned with the environment. They always need ISO certification, ISO 14,000 certification, even for the sample. If you want to sell any product in the European market, especially, or in the developed country, you must need some environmental certification, just like I mentioned, ISO 14,000, just only to pass the samples, not for the final product. So that's why this study is very important. And globally, you know that before 2011, the Germany was, I think, more than 70% was on nuclear and fossil fuels. But after 2011, they have shut down their nuclear because it was risk to human health. And then gradually, and now majorly they are producing from renewable energies. So in every country, because global warming, pollution, climate change, it is affecting everyone. So globally, the people are highly concerned over these things. Thank you, sir, for giving us such a detailed answer. Now, moving towards our alumni, सर मीर मोहम्मद जमाली साहब, जैसा कि आप असिस्टेंट मैनेजर हैं के इलेक्ट्रिक ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एनर्जी इन्वायरमेंट इन पर्टिकुलर जो ये फील्ड है, उसने क्या रोल प्ले किया आपकी करियर बिल्डअप में? और अगर बैक इन 2013 की बात की जाए, तो उस वक्त एनर्जी एंड इन्वायरमेंट का क्या स्कोप था? और अब अगर देखा जाए, तो अब क्या रोल प्ले कर रही है ये फील्ड? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि 2013 में मेरी जो एडमिशन हुई थी दाऊद यूनिवर्सिटी में एनर्जी इन्वायरमेंट में, तब जो है 2011 और 2012 के बैचेस स्टार्ट हुए थे ना, तो तब तो मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो? जी सर। अच्छा, जी सर, यू आर क्लियर। हाँ, तो तब यूनिवर्सिटी जो दाऊद यूनिवर्सिटी है वो कॉलेज से यूनिवर्सिटी हुई थी। तो जो डिपार्टमेंट है एक तो नया था, और उसके अलावा ये है कि लैब्स वगैरह जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, ये था कि हमारी जो फैकल्टी है उनकी एफर्ट से जो आउटसोर्स जैसे पीसीआर था, लेबोरेटरी वगैरह में के लैब्स वगैरह करवाए गए। तो अच्छा, बाकी ये है कि मेरे जो करियर में एनर्जी इन्वायरमेंट का मैं बताना चाहूँ कि 2013 में ना जैसे मेरी एडमिशन हुई थी, तो न्यूज़ लेटर वगैरह में हम ये देख रहे थे कि इन्वायरमेंट का कितना स्कोप है, जॉब मार्केट क्या है। उसके बाद जब मैंने जो है 2016 दिसंबर में मतलब कंप्लीट किया एनर्जी इन्वायरमेंट, उसके बाद बहुत सारी डिफरेंस आई है।
मैं अभी भी ये मतलब मेरा जो रियल एक्सपीरियंस है मैं ये बता रहा हूँ, जो भी बाहर के फुली फंडेड जो वर्ल्ड बैंक है उसके जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उन पे जो इन्वायरमेंटल इंजीनियर है उनका एक पर्टिकुलर जो है ना स्कोप है। वो जो है ना मैं दो चीज़ों में ज़्यादा फोकस करते हैं, एक है सोशल और सेकंड इन्वायरमेंट। तो एनर्जी इन्वायरमेंट देखा जाए तो बेसिकली जो है सर ने जो बताया था कि एनर्जी इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट इसीलिए बनाया गया है कि जो एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट सेफ इन्वायरमेंट का करें। तो अभी तो रिन्यूएबल में भी यहाँ पे सिंध में भी मतलब माशाल्लाह देखें कि विंड पावर प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो गए हैं, तो उसमें भी अच्छा खासा काम हो रहा है। तो इसका ये है कि हमारा जो एनर्जी इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है उसका जो अभी जॉब मार्केट है वो दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। I hope Thank you clear so हो गई much, होगी। sir. Yes, sir. Thank you for giving us informative answer. As we have a undergraduate student Mohammad Danial as well. तो Danial, being a student, आप हमें बताएं कि क्या facilities energy and environment department provide करता है अपने students को? Like कौन कौन सी lab से facilitated है ये department और क्या क्या industrial visits होते हैं हमारे? First of all, good evening and assalamu alaikum to all. There are lots of facilities provided by Dawood University to their students. Can you hear me? Yes. Like, yeah, there are so many labs like water laboratory, environmental laboratory, computer lab, GIS lab. I wish to mention specifically GIS lab because GIS is a very important software when it's come to monitor environmental problem, environmental energy, environmental science, and environmental engineering problem, because it makes us very easy to solve the environmental issues, because it provides easy to surveys, water quality management, environmental impact assessment is become very easy by using GIS. We have also used in our previous semester. So apart from these facilities, university also provide industrial tour, which is very important, because हमें studies के अलावा exactly पता चलता है कि industries कैसे काम करते हैं, environmental engineer किस तरह industry में काम करता है. So thank you. ओके, थैंक यू दानियाल। सर, आज दोबारा आपकी तरफ आते हैं कि स्टूडेंट्स को कौन कौन सी स्किल्स पर फोकस करना चाहिए वाइल परस्यूइंग दिस डिग्री? को कौन कौन सी स्किल्स पर उन्हें फोकस करना चाहिए, कौन सी स्किल्स पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है वो बढ़ सकें? बेटा, स्किल्स के हवाले से अगर आप बात करें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की, तो हमारे पास इन्वायरमेंटल मॉडलिंग के हमारे पास सब्जेक्ट्स अब इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, जिसके अंदर GIS है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डे बाय डे वी आर गोइंग इन अ वे ऑफ ऑटोमाइजेशन और डिजिटाइजेशन का दौर है। तो उसको देखते हुए आप जितने आपके पास इन्वायरमेंटल मॉडलिंग के कोर्सेज हो सकते हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। GIS के अंदर आपके पास हो गया, इसके अलावा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के हवाले से आप पाइथन और विजुअल बेसिक्स प्रोग्राम के पास बेसिक्स आपके पास होने चाहिए, स्किल्स होने चाहिए। और दूसरी बात, आपके पास जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि प्राइमावेरा वगैरह वगैरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, तो ये आपके पास स्किल्स अगर होगी तो इट विल बेनिफिशिएट यू इन ऑर्डर टू गेट द जॉब इन गुड प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। जी बेटा। सर, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमेशा ये सवाल होता है कि एनर्जी एनवायरनमेंट फील्ड जो है दाऊद यूनिवर्सिटी में PEC रजिस्टर्ड है या नहीं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बेटा, हमारा जो प्रोग्राम है इट इज़ PEC रजिस्टर्ड, PEC एक्रीडेटेड। हमारे पास जो लास्ट PEC एक्रीडेशन हुई है जिस बैच की, वो 2017 है। अभी 2018 का जो बैच हमारा पास आउट हो गया है, और होपफुली वी हैव सबमिटेड अ रिपोर्ट टू द PEC एंड होपफुली विद इन 2 मंथ्स वी विल गेट द एक्रीडेशन ऑफ 2018 बैच आल्सो। तो हमारे पास पहले ये एक किराए थी कि हमारे पास शुरू की जो बैचेस थी उनको थोड़ा सा डिले हुआ था PEC के एक्रीडेशन में अबाउट फॉर 6 मंथ्स और सो, मगर नाउ इट इज टोटली ओके एंड वी आर प्रोग्रेसिंग इन अ गुड मैनर। या Okay, thank you, sir. Sir अजीजुल्लाह चन्ना, my next question is from you कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो एडमिशन ले रहा है यूनिवर्सिटी में, तो वो क्यों एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की फील्ड की तरफ आए? लाइक व्हाई वन शुड चूज दिस फील्ड
मतलब फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी उसके लिए एकेडमिक की साइड पर या इंडस्ट्रियल की साइड पर, इसको आप हाईलाइट कर दें। Actually, this is a very important question. Every student when getting admission everywhere thinks that कि हम इस फील्ड में जा रहे हैं तो इसका हमें जॉब मिलेगी या 4 साल के बाद हम डिग्री लेके घूमेंगे. So basically, here is my concern that that is what is practiced in our society. We always run after jobs, but whatsoever I see, there are many jobs of environmental engineers nowadays. I personally have in last 3 to 4 months have recommended several students and they have got the job. But actually, what my thing or what my suggestion is that the students shouldn't focus on the jobs; they should focus on entrepreneurship. So there is a huge room for entrepreneurship in environment. So Dr. Ayaz and we graduated from same institute. So whenever I don't want to take the name of the company. There is a local company of they are selling the RO systems and RO water. So when I see they are not technically sound, but the students which are graduating from environmental engineering, they have more capability to operate or to conduct these kind of businesses. And especially you know that the energy एक चीज बेटा कही जाती है ना, जिस चीज में क्राइसिस होता है उस चीज में अपॉर्चुनिटी होती है. आप हमारे पास पाकिस्तान में एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा मसला है. आप देखेंगे कि ग्रेजुएट्स तो अवेलेबल हैं मार्केट में सिंस इट इज फ्रॉम 2009 और एनर्जी एनवायरनमेंट पर्टिकुलरली द क्विज हैज स्टार्टेड इन 2005. सो ग्रेजुएट्स तो हैं मार्केट में पर कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं. तो इफ यू आर कॉम्पिटेंट इनफ यू शुडंट वरी अबाउट द जॉब आफ्टर ग्रेजुएटिंग. सो इट्स काइंड ऑफ द वेरी गुड फील. और जितना आप एनर्जी क्राइसिस आप देखें आजकल कितने रिन्यूएबल एनर्जीज में जा रहे हैं. सो इफ़ यू टेक इट एज एंटरप्रेन्योरशिप or if you take as a business opportunity, there is a huge room for business opportunity in the environment or especially in energy and environmental engineering. जी बेटा. सर कोई भी स्टूडेंट जो है वो फील्ड चूज करने से पहले उनका मेन क्वेश्चन यही होता है कि लाइक हमें कोई ऐसी फील्ड मिले जिसका स्कोप अच्छा हो, पाकिस्तान में, हमारी कंट्री में या वर्ल्ड वाइड स्कोप अच्छा हो. तो दोनों फील्ड्स का एनवायरमेंटल बीएस प्रोग्राम या एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसका क्या स्कोप है पाकिस्तान में, वर्ल्ड वाइड? बेसिकली जब स्टूडेंट पूछते हैं स्कोप स्कोप ना, तो दे आर नॉट आस्किंग अबाउट स्कोप, दे आर एक्चुअली आस्किंग अबाउट जॉब मार्केट. स्कोप तो वाइड होगा. आप देखें एनवायरनमेंट एवरीवेयर इज एनवायरनमेंट, वेयर सो एवर यू लुक देयर इज एनवायरनमेंट, वेयर सो एवर यू लुक देयर इज एनर्जी. तो स्कोप तो वाइड है. आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाएं तो अगर उसकी आप देखें ऐसी इंजन डिज़ाइन वगैरह एनर्जी इन्वॉल्वमेंट है, तो मतलब आपके एनर्जी का स्कोप उधर भी है. एंड दे इमिट एमिशंस. सो आप देखें कि एनवायरनमेंट इन्वॉल्व है. तो स्कोप तो वाइड है काफ़ी. मतलब मुझे नहीं लगता कि इंजीनियरिंग में ऐसी कोई और फील्ड होगी जितना स्कोप इतना वाइड. अभी बात की जाए जॉब मार्केट की, कि एनवायरमेंटल साइंस की ज़्यादा जॉब मार्केट है या प्रेफर करना चाहिए या एनर्जी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को. So basically, if you have a technical, just like if you want to design some wastewater treatment plants, if you want to control air pollution, design उसके equipment आप design करना चाहते हो या JIS के through, JIS तो वो भी कर सकते हैं. Means it's a common tool. As I told you, there's a minute difference, a hairline difference. Difference यही है कि जो engineers होते हैं वो design पढ़ते हैं. Means they know डायमेंशंस कैसे बनाई जाए, आपका फ्लो एक सिस्टम वेस्ट वाटर का या आपका सॉलिड वेस्ट का लैंडफिल कैसे डिज़ाइन की जाए. और साइंटिस्ट और द साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं दे स्टडी द फिनोमेना, दे स्टडी. जो EIA स्टडीज़ होती हैं इसमें दोनों का इक्वली. रिसेंटली मैंने एक EIA स्टडी अटेंड की थी. सो देयर स्पेशलिस्ट वाज स्पेशलाइज्ड इन साइंस, but they also need some engineering support. So you cannot compare or you cannot say which field is better or which field has a limited job market. पर यहाँ पे एक एडवाइस करना चाहूँगा स्टूडेंट्स को. जॉब मार्केट जो होती है वो फील्ड पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है स्टूडेंट पे.
अगर आप अगर अपने पास एक घर में ड्राइवर रखते हैं, अगर उसके पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ड्राइविंग लाइसेंस होगा, मतलब वहाँ ट्रेनिंग कोर्स होगा, सर्टिफिकेट होगा, और उसको कार पार्क करना नहीं आएगी, यू वोंट अपॉइंट हिम। तो डिग्री इज नाउ डेज इज जस्ट सर्टिफिकेट, और उसकी वैलिडिटी तब होती है जब यू अश्योर दी सर्टेन स्किल्स। और सम स्टूडेंट्स के लिए मेरी ये भी एडवाइस है, कुछ कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में लिमिटेड कंटेंट्स होते हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू ब्लेम। बट मेरी ये सजेशन है, इस नाउ 21st सेंचुरी, इस 2022, यहाँ पे आपकी थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन, जो मतलब पॉसिबल नहीं है एक टीचर के लिए वो डेटा अक्वायर कर सके। सो इट्स नाउ, आपको पता है कि यू आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम ओबी सिस्टम। ओबी इज लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। पहले होता था टीचर सेंटर अप्रोच, टीचर एक होता था, उसके पास सारी नॉलेज होती थी, स्टूडेंट सब उससे सीखते थे, टीचर के बाहर कुछ भी नहीं होता था, मतलब टीचर वाज एवरीथिंग। पर अभी ये नहीं है, अभी स्टूडेंट जो है हिमसेल्फ इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। टीचर का रोल है आपको फैसिलिटेट करना। तो स्टूडेंट जितना इन चीज़ों में, स्पेशली द सब्जेक्ट डॉक्टर सॉरी मिस्टर डैनियल मेंशन अबाउट द JES, this is very important thing, and the Dr. Ayas told about the molding. This is also very important. So but molding the mostly engineering field में आ जाएगा, but scientist environmental science के लिए EIA और स्पेशली JES और आपकी वाटर क्वालिटी वगैरह, दीज सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहने का मकसद कि फील्ड का स्कोप नहीं होता, आप किसी फील्ड में चले जाएं, पैशन का और बंदे का खुद का स्कोप होता है। जी बेटा। थैंक यू सर। सर मीर मोहम्मद जमाली साहब आपकी तरफ आते हैं कि एज यू आर नाउ इन अलमनाई, तो आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज करने चाहिए उन्हें, लाइक कौन कौन से कोर्सेज इंपॉर्टेंट है उनके लिए, जैसे नेबोश, आयोश, एनर्जी ऑडिटिंग वगैरह। देखें कि हम जो है एनर्जी इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो है एनर्जी के जो सब्जेक्ट हैं वो भी और इन्वायरमेंट के भी। अच्छा, बेसिकली ये अपना पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एनर्जी में भी जो है ना PEC एक्रेडिटेशन करके देती है स्टूडेंट्स जो करना चाह रहे हैं, और इन्वायरमेंट में भी ना। तो एनर्जी और इन्वायरमेंट, आवाज़ आ रही है मेरी? तो एनर्जी और इन्वायरमेंट जो है, अगर उनको जी यहाँ सर। पे जॉब मार्केट के हवाले से ये है कि दोनों फील्ड में अलग अलग जॉब्स हैं। तो अच्छा, तीसरी जो फील्ड है वो है HSE, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट। हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट का एक अच्छा खासा रोल है। तो उसके लिए कुछ जो कोर्सेज होते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल है, आयुष है, निबोश है, तो या जो एनर्जी में जो एनर्जी ऑडिटिंग के कोर्सेज हैं, और ISO 14001 है, 45001 है। इससे ये है कि अगर जो जिस मतलब जो स्टूडेंट HSE के फील्ड में जाना चाहता है, तो उसके लिए ये है कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होना चाहिए। वैसे तो HSE जनरल एक जो है ना वो है अपना डिपार्टमेंट है, मगर अभी जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वो उन लोगों को ये समझ आई है कि अब जो इन्वायरमेंटल इंजीनियर है ना, वो HSE के फील्ड में उनका जो है ना एक ज़्यादा मतलब समझो कि क्रेडिटेबिलिटी है। तो इसीलिए जैसे कि मैं अभी अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हमने जो है ना, मैं एक इलेक्ट्रिक के ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, हमने एक रिक्वायरमेंट रखी है कि जो HSE वाला आना चाहिए वो मिनिमम इन्वायरमेंटल इंजीनियर होना चाहिए। और बाकी जो है कोर्सेज है, आयुष है, ओशा है, तो ये जो है ना बेसिक 2 कोर्सेज है अगर HSE में आने के लिए करें। उसके बाद फिर निबोश आ रहा है फर्दर, और अगर इन्वायरमेंट साइड जा रहे हैं तो ISO 14001 कर लें। उसके बाद अगर एनर्जी में जा रहे हैं तो वो जो है एनर्जी ऑडिटिंग का कोर्स है। तो ये बिल्कुल बेनिफिशियल होंगे। मगर सर की बात जो अदिल्ला साहब ने बात की है कि हमें जो है ना थियोरेटिकली और चीज़ें जो है ना पता होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेश के लिए ना जॉब मार्केट में इंटर होना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए जो हम पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो उसकी जो है ना नॉलेज हमारे पास इनफ होना चाहिए। देखो, जो डिग्री है ना वो सिर्फ एक एलिजिबिलिटी के लिए होती है, मगर उसकी जो अपना कोर्स कंटेंट है उसके बारे में नॉलेज होना और थॉरोली जो है चीज़ें होना, तो वो जो है हमें आगे क्वालिफिकेशन के लिए जो है और सिलेक्शन के लिए एक स्टेप जो है मतलब आगे इजीली हम पहुंच सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि जो HSE में जाना चाह रहा है तो उसको जो ये इंटरनेशनल आयुष कोर्स है और ओशा है वो करना चाहिए, और उसके बाद जो थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद निबोश वगैरह करें।
वो आसानी से जो है ना जॉब मार्केट में HSC की तरफ आ सकता है। अगर इन्वायरमेंट साइड आना चाह रहा है तो फिर उसके लिए ये है कि आईएसओ का जो मैंने बताया 14001 है, बाकी जो वेस्ट वाटर के भी कुछ जो शॉर्ट कोर्सेज हो रहे होते हैं तो उसके जो ETP वगैरह के वो उसमें जा सकते हैं। तो क्योंकि अभी जो देखा जाए कि हमारे पास एक मेंटालिटी यही है कि एनर्जी और एनवायरनमेंट को एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ही समझ रहे हैं फिलहाल। तो ये है कि अगर जो एनर्जी साइड जाना चाह रहा है तो वो फिर एनर्जी के कोर्स वगैरह करके जा सकता है। जैसे ज़्यादातर हम रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ रहे हैं तो अब जॉब मार्केट रिन्यूएबल की अच्छी है, क्योंकि अपना सोलर में जो है यहाँ पे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसके बाद जैसे मैंने विंड में बताया, हाइडल में भी सीपेक के थ्रू भी बहुत सारा काम हो रहा है। तो इन चीज़ों में अच्छा मैं एक और अच्छी चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जैसे नेप्रा है, नेप्रा जो भी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर हैं उनके लिए एक नेप्रा पावर सेफ्टी कोड बना है। और वो क्या करते हैं, हर लाइसेंसी का ना एनुअल इवैल्यूएशन करते हैं। तो उसमें ये है कि जो HSC के बंदे हैं, एनवायरनमेंट के बंदे हैं, तो उनको जो है ना कि एक स्पेस मिल रहा है कि वहाँ पे उन लोगों ने इतना लिखा हुआ है कि आप जो है ना इतने बंदों 500 अगर बंदे हैं तो उनके लिए HSC के और एनवायरनमेंट के बंदे कितने होने चाहिए। अब जो है पब्लिक सेक्टर में भी इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट आ गई है। अब लास्टली CPPA है जो पावर परचेसर कंपनी है, तो मतलब वो फेडरल ऑफ गवर्नमेंट की है, उसमें इन्वायरमेंट की जॉब्स आई हुई है। NTDC उसमें भी आई हुई है। ऐसे अभी जो रिसेंटली हमारे पास बापड़ा वाले आए थे उन लोगों ने जो है ना यहाँ से सर्वे किया, हमारे पास के चीजें देखी और इम्प्लीमेंट करवाने के लिए अपना टीम बना रहे हैं HSC और इन्वायरमेंट का। तो इसका मतलब यही है कि अब जो है एनर्जी इन्वायरमेंट का फ्यूचर हमें दिखने में आ रहा है हमारे ही मुल्क में। देखो जैसे सर ने बताया कि फॉरेन में तो ये चीजें ऑलरेडी पहले से हो रही है, मगर हमारे पास जो है इन्वायरमेंट का अभी एक जो है ना ज्यादा स्पेस है और उसमें जो है ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आगे भी आने वाली है। बिल्कुल सर, ये एक इमर्जिंग फील्ड है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच एन इंफॉर्मेटिव आंसर। सर अयाज, मेरा आपसे सवाल क्वेश्चन है कि अगर लाइक एनवायरमेंटल बेस के हवाले से आप कैसे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे कि वो दाऊद यूनिवर्सिटी में एनवायरमेंटल BS की तरफ आए और ये डिग्री परस्यू करें? बिल्कुल, मैं इनको इस तरह से मोटिवेट करूंगा कि हमारे पास इन्वायरमेंटल साइंस, जैसे अभी हमारे अजीजुल्लाह चन्ना साहब ने, मीर जमाली ने फरमाया कि ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। यहाँ पर आए, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे मौके आपके खुलेंगे। वो इस हवाले से कि सबसे पहले जो हमारी यूनिवर्सिटी, इट इज़ बेसिकली लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द कराची, ठीक है, नियर टू मज़ार कायद। सबसे बड़ा हमें बेनिफिट ये है कि कराची के अंदर है एंड देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज, सो मेनी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स ओवर देयर, जहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंस की ज़रूरत है, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट की ज़रूरत है। जैसे कि सुपार को है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, हमारे पास इसके अलावा सीडा है, सिंध इरिगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी है, वाटर बोर्ड है, KDA है। हर जगह पे आपके पास इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट की ज़रूरत है। हाँ, यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्पेसिफाई इसको करने की ज़रूरत है कि कहाँ पर हमारा इन्वायरमेंटल इंजीनियर फिट हो सकता है और कहाँ पे हमारे पास इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट फिट हो सकता है। तो आप जब भी देखेंगे तो हमारे पास न्यूज़पेपर में जब जॉब्स आती हैं तो BS इन्वायरमेंटल साइंसेज ऑब्लिक B इन्वायरमेंटल इंजीनियर, तो बहुत सी जगह पे जो एड्स आती हैं वो कंबाइन एड आती है कि यार यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट भी चल जाएगा और इन्वायरमेंटल इंजीनियर भी चला जाएगा। कुछ जो हमारे पास होती हैं वो बहुत ही, जब जैसे अजीजुल्लाह साहब ने फरमाया कि डिज़ाइनिंग के हवाले से जो जॉब्स होते हैं वहाँ पर इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज ज़्यादा मांगते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास इन्वायरमेंटल इंजीनियर फिट हो सकते हैं। सो बाय एंड लार्ज हमारे पास इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट एंड दे विल गिव द सॉल्यूशंस टू द इंजीनियर्स that you have to apply a certain technology, a certain solution कि यार आप ये हमने एक चीज़ इनोवेट कर ली है, अब आप इसको अप्लाई करें, इंजीनियर्स को देंगे और इंजीनियर्स का काम है कि उसको सस्टेनेबल वे के अंदर इम्प्लीमेंट करके सोसाइटी को है वो बेनिफिशिएट करें। तो इन्वायरमेंटल साइंस में बहुत ज़्यादा स्कोप है, इमर्जिंग फील्ड है। दूसरा ये कि कराची के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन करके बाहर जाते हैं तो यू विल हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ रिगार्डिंग doing masters MS in environmental sciences. You can easily go to Europe via hunting scholarship, दाद स्कॉलरशिप है, यूरोपियन यूनियन स्कॉलरशिप है, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई कर सकते हैं बाय गिविंग GRE एंड यू कैन गो टू द US। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है बट एनवायरमेंटल साइंस
साइंस के सब्जेक्ट्स में। जी Thank you, sir. Daniel, my next question is from you. Like, स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की अगर बात करें तो वो कितनी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए? लाइक पोस्टर कॉम्पिटिशन्स होते हैं या फिर हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसमें कितना स्टूडेंट्स को आप मोटिवेट करेंगे कि पार्टिसिपेट करें, ये कितनी इंपॉर्टेंस रखती है? और अगर इन पर्टिकुलरली एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो क्या ये डिपार्टमेंट ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है या करा चुका है? इसको आप थोड़ा हाईलाइट कर दें। Yes, Daniel. Please unmute yourself. Your voice is not coming. Yusra, could you please repeat the question? I didn't hear you properly. I'm saying कि Yusra, स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कितनी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए? yes, it is very और हमारे जो important to डिपार्टमेंट take. है, Sorry, I हमारा जो had डिपार्टमेंट heard है, your question. Okay. ओके थैंक यू। To take part in extracurricular activities is very important apart from academics, because it connects us students from nationally and internationally, like what is happening in the world right now regarding the environment. Like our department, like energy and environmental department, has arranged a poster competition and project competition. So this help us to student to connect with the world, like what is happening in the Pakistan and the globally. Secondly, the seminars are happening in the universities. Seminars, guests are coming. Like a few months ago, our international guest has arrived from the international institute, Chinese guest. They specifically gave lecture on solid waste management, which was a additional part our from university. So it is very important, and I must suggest each and every student of environmental studies and science must participate in the extracurricular activities. Thank you. ओके थैंक यू दानियाल। सर अजीजुल्लाह चन्ना साहब, मेरा ये क्वेश्चन है कि लाइक आजकल जो है वो नेट जीरो एमिशंस की या ग्रीन एनर्जी कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, तो ये कॉन्सेप्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे और इसको आप कैसे रिलेट करेंगे एनवायरनमेंट से? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आजकल आपको पता है कि बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग और उसमें मेन कंट्रीब्यूटर CO2 है, तो जो भी आपकी नेट ज़ीरो एनर्जी और नेट ज़ीरो एमिशन की तरफ हम जा रहे हैं। बेसिकली एक टेक्निक्स होती हैं ज़ीरो एमिशन टेक्निक और एक होती है ज़ीरोइंग एमिशन। मीन ज़ीरोइंग ये होता है कि प्रैक्टिकली इट्स हार्डली पॉसिबल कि आप 100% ज़ीरो एमिशन की तरफ जाएं अगर एक आप टेक्नोलॉजी यूज़ करें। अनटिल आप वो टेक्नोलॉजी सब्स्टिट्यूट कर दें वो अलग चीज़ है। तो देयर इज़ अ फोकस कि आप उसकी इमिशंस को कैसे रिड्यूस करेंगे। ठीक है बेटा? यस सर, थैंक यू सर फॉर द आंसर। सर डॉक्टर आज आपकी तरफ आते हैं कि लाइक एनर्जी एंड एनवायरनमेंट में जब बैचलर्स डिग्री जब मिल जाती है तो उसके बाद क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सब ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में लोग जो है वो रिसर्च कर सकते हैं अगर कोई स्पेशलाइजेशन करना चाहे आगे चलकर? एनर्जी बी की बात कर रही हैं आप, BS की बात कर रही हैं? सर दोनों के हवाले से बता दें। दोनों के हवाले से more or less they are more similar fields in terms of the pure word environment। ठीक है, बेटा हमारे पास दो रास्ते से हम अपना करियर प्रोग्रेस कर सकते हैं ना, एक है एकेडेमिया, एक है हमारे पास प्रैक्टिकल फील्ड। ठीक है, तो अगर आप एकेडेमिया में जाने चाहते हैं तो इफ़ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेसर, वांट टू बिकम अ लेक्चरर, तो आप जल्दी से मास्टर्स करें। ठीक है, और इफ़ यू वांट टू grasp some kind of experience regarding industry, what you need to do, you just to throw yourself into the industry। इंडस्ट्री में जाएं, फिर आपके पास जो भी आपको वहाँ पे पैकेज ऑफर होता है उसको आप पकड़ें। ये नहीं करें कि यार कम ज़्यादा सैलरी है, ऑब्वियसली यू विल बी फ्रेश ग्रेजुएट एट ए टाइम, तो उसके बाद आप फील्ड की तरफ जाएं एंड आफ्टर गेटिंग एक्सपीरियंस ऑफ सम सर्टेन years you will do some certain technical courses
regarding that particular field and then just progress it by doing masters and so on. तो एक तो ये वे है, और दूसरा ये है कि आप की एक्सपर्टीज क्या है। जैसे सही अजीजुल्लाह साहब ने कहा कि यार जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि यार मैं EIA में अच्छा हूँ, मैं वाटर ट्रीटमेंट में अच्छा हूँ, मैं HSE में अच्छा हूँ, या मैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को अच्छा समझता हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो खुद आप अपनी जॉब मार्केट सर्च करते हैं, नहीं यार मुझे ए की तरफ जाना है, बी रूट की तरफ जाना है। तो जब आप बाहर जाएंगे तो यू विल बी हैविंग सो मेनी वेज। तो फिर आपको कैटेगराइज करना है कि यार ये मैं हूँ और ये जॉब जो है ये मेरे लिए फिट है। तो फिर आपको मनवाना है मार्केट के अंदर कि यार फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ एंड आई हैव 2 जॉब्स और 1 जॉब टू ऑफर टू अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, अ पर्टिकुलर एस्पायरेंट, तो मैं किसको दूंगा? मैं 10 में से कहूँगा कि यार तुम्हें मैं जो जॉब देता हूँ तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो दूसरे 9 लोगों के पास नहीं है। तो आपको स्पेशल स्किल्स की तरफ जाना पड़ेगा, उनको सीखना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल अगर EIA है तो EIA के आपको सम सर्टेन कोर्सेज करने पड़ेंगे, आपको पब्लिक मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी, EIA पार्टिसिपेशन मीटिंग्स होती हैं हमारे पास, वो आपको अटेंड करनी पड़ेगी। यू हैव टू अटेंड सो मेनी ट्रेनिंग्स, सेमिनार्स। तो आजकल जो एक कन्वेंशनल वे ऑफ टीचिंग था ना बेटा, वो खत्म हो गया है। OBE सिस्टम आपके पास आ गया है। ऑब्वियसली आपको फैकल्टी, आपकी यूनिवर्सिटी आपको सम सर्टेन ट्रेनिंग्स कराएगी। इससे बियॉन्ड द पावर जाके आपको खुद एफर्ट्स करने हैं कि यार यू हैव टू जस्ट create the difference between you and other students in order to earn a good quality of job। ठीक है, तो ये स्टूडेंट पे क्या कहते हैं मुनस्सर है कि वो किस फील्ड में खुद को आगे ले जाना चाहता है। ठीक है बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। सर मीर साहब, अच्छा, मीर मोहम्मद जमाली साहब। एक और मैं यहाँ पे चीज़ ऐड करता जाऊँ कि हमारे पास जो मोस्टली बच्चे पास आउट होते हैं वो या तो रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ चले जाते हैं। हमारे बहुत से जो बच्चे हैं वो विंड मिल्स इंडस्ट्रीज के अंदर लगे हुए हैं या वाटर ट्रीटमेंट्स की तरफ लगे हुए हैं, या तो फिर तकरीबन हमारे पास 30 से 40% बच्चा जो है वो HSE सेक्टर की तरफ चला जाता है। तो मैं आपको कहता हूँ कि अगर HSE सेक्टर की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत से बच्चे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशंस की जरूरत पड़ेगी। यानी बैचलर्स के बाद आप छोटे छोटे HSE के कोर्सेज करें, जैसे कि लीड ऑडिटर है आपके पास, आयोश है, नेबोश है, ठीक है, ISO मैनेजमेंट सिस्टम के आप ISO के कोर्सेज करें 14001 एंड सो ऑन। फिर आप HSE की तरफ निकल जाते हैं, फायर सेफ्टी के कोर्सेज करते हैं। तो HSE का जो स्कोप है पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन स्कोप है। हर इंडस्ट्री के अंदर बेटा, हर इंडस्ट्री, आप जब ये सवाल क्या करें ना कि जॉब मार्केट कहाँ है, कहाँ कहाँ पे एनवायरमेंटल इंजीनियर या HSE इंजीनियर की जरूरत होती है, तो आप इस क्वेश्चन को उल्टा कर दिया करें कि कहाँ कहाँ जरूरत नहीं होती। तो फिर शायद हम आपको सोच के बताएंगे यार हाँ यहाँ जरूरत नहीं होती। क्योंकि अगर इस तरह हम बात करने में तो हमें शायद हमारी गिनती कम पड़ जाएगी कि हम इसको बता दे। ठीक है ना। तो हर जगह देखिए, जहाँ एनर्जी की बात होगी, जहाँ प्रोडक्शन होगी, जहाँ भी कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर की जाएगी, तो उसके साथ उसके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ठीक है, तो जो होंगे तो वहाँ पे आपके पास एनवायरमेंटल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, उसके साथ साथ HSE की जरूरत पड़ती है। HSE की जरूरत कहाँ पड़ती है बेटा? जहाँ पे आपका वर्कर हो। तो ऑब्वियसली हर इंडस्ट्री में वर्कर होता है। ठीक है, आपका मैनेजर भी एक किस्म का वर्कर है, फ्रॉम अ मैनेजर, देन असिस्टेंट मैनेजर मीर जमाली साहब खुद हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वर्कर आता है, फिर वर्कर के पास सुपरवाइजर वगैरह वगैरह। उनकी जो HSE, उनकी जो सेफ्टी है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास HSE की जरूरत पड़ जाती है। तो बहुत सी इंजीनियर्स अपना इंडस्ट्रीज के अंदर एनवायरमेंट इंजीनियर भी होता है, उसके साथ साथ HSE इंजीनियर भी होता है। सो मीन्स यू विल हैव वैरायटी ऑफ ऑप्शंस कि यार मैंने नेबोश किया हुआ है, ओके यार आई एम फिट फॉर HSE, आई हैव ओनली BE ग्रेजुएटेड फ्रॉम दाऊद यूनिवर्सिटी या मेरान यूनिवर्सिटी। ठीक है, एनवायरमेंटोलॉजी, तो मैं एनवायरमेंट की तरफ फिट हो जाऊंगा। ठीक है, फिर मुझे मास्टर्स करने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ BE से काम नहीं चलेगा, यहाँ BS एनवायरमेंटल साइंस से काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास HSE सर्टिफिकेशन नहीं है तो फिर आपको मास्टर्स करना लाजमी है बेटा। क्योंकि पहले ये होता था कि बैचलर पे नौकरी मिल जाती थी, अब जाहिर सी बात है कंपटीशन है, हायर नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स आर बीइंग ग्रेजुएटेड एनुअली। ठीक है, अब तो देखें ना, हम भी BS करवा रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी BS करवा रही है, सर सैयद करवा रही है, तो ऑब्वियसली अब हम कर समझे कि 20-30 बच्चा और निकलेगा हर साल। मेरान यूनिवर्सिटी ऑलरेडी करवा रही है। अब इन्होंने भी, इनको भी मैं मुबारकबाद दूंगा, इनके पास वाटर सेंटर है US पिकास का, सर रसूल बटमार साहब वहाँ हेड है हमारे
मेरे भी टीचर रह चुके हैं, सर अजीजुल्लाह साहब के भी रह चुके हैं, इन्होंने भी BS एनवायरमेंटल साइंस से शुरू किया, तो बहुत अच्छा रिसर्च है। तो वहाँ से भी 20-30 बच्चा मार्केट में आएगा, तो आप इमेजिन करें कि हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, तो आपको फिर मास्टर्स करना पड़ता है। क्या 16 साल की 12 साल की आपकी इंटर हो गई, 4 साल और लगा लें, तो 16 साल की एजुकेशन लेके तो हर कोई घूम रहा होगा, तो सीधी उसको क्या कहते हैं, वेटेज दिया जाएगा जिसके पास मास्टर्स होगी। ठीक है बेटा? यस सर, थैंक यू सर। सर जमाली साहब, आपसे एक सवाल है कि लाइक इंटर्नशिप की कितनी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, और कौन कौन सी कंपनीज जो है वो ऑफर करती है एनर्जी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स वगैरह? इंटर्नशिप्स जो है ये एक्चुअली यही है कि जो इंडस्ट्री के प्रोसेस होते हैं ना, उससे हमें नो हाउ होता है कि इंडस्ट्री में बेसिकली वो जो प्रोसेस चल रहे हैं, या हमारा जो इन्वायरमेंट का जो स्कोप है वो कितना है, और हमारा जो है ना फ्यूचर में काम क्या होगा, स्टूडेंट को ना उसके बारे में नॉलेज होगा। तो बाकी अगर इंटर्नशिप जो कंपनीज है, जैसे PCSR लेबॉर्ट्री है वो भी करवा रही है, उसके अलावा एंग्रो जो है उसमें भी इन्वायरमेंट के आ रहे होते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उसमें भी आ रहे होते हैं, और OGDCL में भी। उसके अलावा ये है कि जो इंडस्ट्रियल लियाजन जो डिपार्टमेंट, हर यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है, उसको जो है ना एक रोल अदा और करना चाहिए कि जो इंडस्ट्री है उनके साथ लिंक्स स्ट्रॉन्ग करके अपने जो स्टूडेंट है उनको रिकमेंड करें, क्योंकि कराची में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है, अगर आप जो स्टूडेंट्स जो है अपना टीचर्स डिपार्टमेंट वगैरह से कोई रिकमेंडेशन मिल रहा है तो इंडस्ट्रियल लियाजन से, तो उनको जो है ना इजीली वहाँ पे जो है ना मिल जाएगा इंटर्नशिप। और विंड पावर प्लांट में भी करवाते हैं। उसके अलावा जो है आपके जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उन पे भी इंटर्नशिप होता है। 𝐾 भी जो है ना इंटर्नशिप अनाउंस करती है। समर इंटर्नशिप मोस्टली जो है ना अभी ऐसा लिंक्डइन वगैरह में जो है ना आते रहते हैं। तो मैं ये भी रिकमेंड करूँगा जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं ना, तो लिंक्डइन में एक्टिव रहें। मुझे ये जो जॉब मिली है ना, ये लिंक्डइन से मिली है। अब जो है जॉब मार्केट जो है ना वो लिंक्डइन में है, तो इसीलिए ये है कि उसमें एक्टिव हो, उस पे जो है ना आपको इंटर्नशिप का भी एक हेल्प मिल जाएगा। उसके अलावा जो कैरियर की जो जॉब्स वगैरह हैं उन पे भी अच्छा खासा हेल्प मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सर। सर अजीजुल्लाह साहब, लाइक यू आर एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन मेहरान यूनिवर्सिटी, तो अगर CGPA की बात करें तो वो स्टूडेंट्स के लिए कितना मैटर करता है? जैसे मैंने आपको पहले कमेंट किया था कि अगर आपके पास एक ड्राइवर है एंड ही इज़ गेटिंग सम ट्रेनिंग फ्रॉम वर्ल्ड रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग, पर उसको ड्राइविंग के स्किल्स नहीं आते, उतने पॉलिश्ड नहीं है, तो आप अपने पर्सनली उसको हायर नहीं करेंगे, उसको हायर करेंगे जो जिसके पास सर्टिफिकेट ना हो लेकिन ड्राइविंग की नॉलेज और ये अच्छी हो। अब जब हम प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जाते हैं, सो दे सी दी स्किल्स। आपकी CGPA 4 आउट ऑफ 4 है, और आपके पास सॉफ्ट स्किल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जैसे दानियाल ने कहा कि स्टूडेंट्स डिबेटिंग वगैरह, को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह इनमें होते हैं। दीज स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक चीज़ आपको नॉलेज है, और अगर आप उस नॉलेज को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट और यू कैन टेक मी एज एन एग्जांपल ऑफ इंटरव्यूअर, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अगला बंदा जिसकी 4 आउट ऑफ 4 GPA है और वो एक सिंपल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे नहीं बता रहा, तो या तो मैं ये अक्स करूँगा कि इसकी जो CGPA इसने मतलब क्रेम करके रट्टा मार के लिए। तो CGPA इज नो डाउट इम्पॉर्टेंट। जहाँ पे भी आपकी CV जाएगी, CGPA मस्ट बी अबव देन 3, और 3.5 से अबव है, 3.5 के नियर है तो अच्छी है, ठीक है। तो नो डाउट बीइंग एम्प्लॉयर, आपसे पहले मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पहुंचेंगे। अगर CGPA कितना भी जीनियस बंदा हो और CGPA उसकी 2.5 है या 2.5 से बिलो है, तो आई वोंट कंसिडर हिम, क्योंकि आई वुड सी मेरे पास 10 एप्लीकेशन हैं जिनकी CGPA 3.0 से ऊपर है या 3.5 के करीब है या उससे भी ऊपर है। तो और एक एप्लीकेशन मेरे पास आई है जिसकी CGPA 2.5 है, तो मैं उसको उठा के साइड पे रख दूंगा, दो इट्स नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस, बिकॉज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो CGPA तो इतनी अच्छी नहीं ले पाते, पर दे हैव अ वेरी गुड टेक्निकल नॉलेज, और वो या तो ऐसा भी हो सकता है कि वो दूसरे सब्जेक्ट्स में वीक रहे हों, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट हो।
तो everybody should given the equal opportunity to prove himself or herself. But आपको पता है कि जैसे कंपनीज हैं they always see the paper, तो CGPA is important. बट उस CGPA के साथ साथ आपको जो आपकी स्किल्स हैं, टेक्निकल नॉलेज हैं, वो भी इक्वल इम्पोर्टेंट है। जैसे आप कहीं पे जैसे सर ने आपको बताया कि इंटर्नशिप्स करना या आप ऑनलाइन कोर्सेज हैं, एक वेबसाइट है, आई वुड सजेस्ट यू, there are millions of courses and from world reputed universities, etx.org. तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के भी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के भी, सोलर एनर्जी डिज़ाइन के काफ़ी कोर्सेज हैं। अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उनके कोर्सेज हैं। सो आई पर्सनली हैव डन अ लॉट ऑफ कोर्सेज फ्रॉम दैट वेबसाइट। तो स्टूडेंट शुड गो एंड पॉलिश देमसेल्फ, और यही टाइम है बेटा अपने आप को पॉलिश करने का। आप सोचेंगे कि हाँ ये कोर्सेज में या ये चीज़ें मैं आफ्टर ग्रेजुएशन कर लूँगा, ग्रेजुएशन के बाद टाइम नहीं मिलता। तो दिस इज़ योर टाइम वेयर यू कैन पॉलिश योर सेल्फ एंड ऑल्सो। और एक ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जैसे हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में कुछ स्टूडेंट्स हैं, दे आर हाईली एक्टिव। मतलब वो सोसाइटीज़ के प्रेसिडेंट्स हैं और आप देखेंगे इवेंट्स वगैरह बहुत अच्छे करवाते हैं। लेकिन जब मैं उनकी मार्कशीट देखता हूँ, दे हैव सप्लीज सप्लीमेंट्री। तो दिस इज़ आल्सो नॉट वेरी वेरी गुड अप्रोच कि आप एक तो को करिकुलर में बिल्कुल आसमान छू रहे हो, और करिकुलम जिसके लिए आप फर्स्ट फोकस इज योर करिकुलम देन को करिकुलर, तो करिकुलम को आप स्किप कर रहे हो। सो बोथ थिंग्स आर इक्वल इम्पोर्टेंट। उसमें ये चीज़ नहीं है कि एक चीज़ इम्पोर्टेंट है और एक चीज़ कम इम्पोर्टेंट है। यू हैव टू फोकस बोथ। ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू सर। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन जो है वो आप सबसे है, मेरे तमाम गेस्ट स्पीकर से, कि इन लास्ट व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव टू द स्टूडेंट्स जो कि अभी एडमिशन टेस्ट देंगे और फिर फील्ड सेलेक्ट करेंगे। सो डॉक्टर अयाज, आपसे स्टार्ट करते हैं। एडवाइस मेरे हवाले से बेटा ये होगी कि ऑल ऑफ माय एंट्री टेस्ट एस्पायरेंट्स कि जस्ट स्टे बी पॉजिटिव, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम एंट्री टेस्ट देते थे तो हमें क्या फीलिंग होती थी कि यार एंट्री टेस्ट है। मैंने मेहरान की एंट्री टेस्ट दी थी, रसीजुल्लाह साहब PUC बैच के थे, तो हम बड़ा एक ना नर्वस होते थे, यार पता नहीं टेस्ट देंगे, पास होंगे, फेल होंगे, क्या होगा, अगर हो गए तो पता नहीं क्या मिलेगा, कितना सेब मिलेगा, ऑरेंज मिलेगी, क्या मिलेगा, मीन्स हमें नहीं पता था। तो जस्ट बी पॉजिटिव और बी कॉन्फिडेंट, और अपने ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर स्किल्स, ट्रस्ट योर स्टडी, कि आप अच्छा पढ़ा है आपने और आप अच्छा करेंगे, और जस्ट get into the admission, and I am looking forward to welcome you in दाऊद यूनिवर्सिटी। आप आए दाऊद यूनिवर्सिटी का हिस्सा बने। देखिए मेरा डिपार्टमेंट सारी अच्छी है, बिकॉज आई एम द HOD ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट इंजीनियर। आई एम नॉट बाउंडिंग यू टू कम ओवर है। मैं ये कहता हूँ कि सारी डिपार्टमेंट्स हमारी अच्छी हैं, ठीक है, अदर केमिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो, सारे मेटलर्जी हो, ठीक है, सारी डिपार्टमेंट्स हमारी अच्छी है। आपको तो वेल मार्क नेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमारे पास यहाँ पे टीचिंग और स्टडी कराई जाती है। अगर हमारा प्रोग्राम एक तो नया है, एनर्जी एनवायरनमेंट को 10 साल हुए हैं, और BS एनवायरमेंटल साइंस अभी शुरू हुआ है। बेसिक एडवांटेज आपको ये है कि अगर एक बच्चा केमिकल इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लेता है, 4 साल के बाद एक एनर्जी एनवायरनमेंट वाला, केमिकल वाला, दोनों पास आउट होके जाते हैं, तो जॉब मार्केट के हवाले से हमारे बच्चे को ज़्यादा एडवांटेज है। वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एक केमिकल इंजीनियरिंग की जॉब की एडवर्टाइजमेंट आती है और एक एनर्जी एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग की जॉब की एडवर्टाइजमेंट आती है, तो केमिकल इंजीनियर्स के लिए आपके पास 100 एप्लीकेशन आएंगी। कितनी आएंगी? 100 एप्लीकेशन। और हमारे पास जो बच्चे होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 25, 30, 40, यानी पूरे अगर ऑल ओवर सन की बात करूँ तो ये रेशो होगा। तो व्हेन यू विल हैव लेस नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, यू विल बी हैविंग मोर चांसेस टू गेट द जॉब। ठीक है, तो हमारे पास डिमांड और सप्लाई के अंदर हमारे पास क्या है कि हमारी जो क्या कहते हैं डिपार्टमेंट है, हमारा जो डिसिप्लिन है, इसके अंदर रूम है, वैकेंसियां हैं, आप यू कैन इजीली गेट एडजस्टेड टू प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। तो आइए दाऊद यूनिवर्सिटी का पार्ट बने, एनर्जी एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में आए, BS एनवायरमेंटल साइंसेस के अंदर आए और हमारा साथ दें, और क्या कहते हैं, इट विल बी अ गुड हेल्दी क्या कहते हैं इंटरेक्शन। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ देम। थैंक यू।
Thank you, sir. Sir Azizullah Saab, what advice you want to give? सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को ये एडवाइस दूंगा, आप कोई भी करियर चूज़ करते हैं, दो चीज़ें देखी जाती हैं कि आपका जो मेरी पर्सनल सजेशन है, मैं स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करूँगा अपना पैशन देखें। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जिस चीज़ के लिए आप बने हैं, वो चूज़ करें। दो इट्स आर्ट्स, ये नहीं मिसाल अगर आप फाइन आर्ट्स में एक बंदा बहुत अच्छा है, उसका इंटरेस्ट है और वो सोसाइटी के प्रेशर की वजह से अगर इंजीनियरिंग करेगा, ही कैन हार्डली सक्सीड। बिकॉज़ जो चीज़ आप अपने स्पिरिट से, अपने दिल से करते हैं, वो चीज़ आप मतलब जॉब की मतलब इंटरेस्ट से या सोसाइटी के प्रेशर से उतनी अच्छी नहीं कर तो लेते हैं। यू कैन अचीव अ गुड सीजीपीए, इवन यू कैन अचीव अ करियर, बट फॉर योर इनर सेटिस्फिकेशन इट्स इम्पोर्टेंट टू चूज़ योर पैशन। उसके बाद अगर आपका पैशन इंजीनियरिंग में है, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आपकी जो भी आपको फील्ड मिलती है इंजीनियरिंग की, दो आप देखेंगे कि आप वो फील्ड चूज़ करें जिसकी मार्केट अवेलेबिलिटी मतलब जिसमें मार्केट में डिमांड हो कि उसकी जॉब्स अवेलेबल हैं या उसके आपको एक प्रॉब्लम नज़र आए कि ये मसला है। सो और दूसरी सजेशन ये भी है स्टूडेंट्स के लिए कि दिस इज़ नॉट टाइम फॉर आपको मैं अगर लिस्ट गिनवाऊँ कि मुझे टॉप 20 बिलियनियर ऑफ द वर्ल्ड के नाम बताएं और उसमें मुझे एक का भी बताएं जो किसी अच्छी कंपनी में जॉब करने की वजह से बिलियनियर बना हो। यू वोंट फाइंड अ सिंगल पर्सन। और अगर मैं टॉप 50 का कहूँ, वो आई हैवंट सीन टॉप 50, पर मैं पर्सनली कह सकता हूँ कि टॉप 50 में भी नहीं होगा। सो जो बिलियनियर्स या जो आप मोस्ट सक्सेसफुल पीपल देख रहे हैं ग्लोबली, जैसे आपका जैकमा हो गया, अलीबाबा का फाउंडर, या आपका मार्क जुकरबर्ग हो गया, एलन मस्क हो गया, जेफरी बेजोस हो गया, दीज ऑल आर दी एंटरप्रेन्योर. If you go in the background of Elon Musk, he was doing PhD in physics, and he was very good in physics. बट उसने वो स्किप करके एक ईबे का अपना बिजनेस स्टार्ट किया एंड नाउ ही इज फुलफिलिंग हिज पैशन. तो स्टूडेंट्स को मेरा यही सजेशन है कि आप कोई भी फील्ड देखें, उसमें देखें कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी कितनी है, तो आप अपनी स्किल्स को कमर्शलाइज कितना कर सकोगे. तो आपकी कौन सी फील्ड में, एनर्जी एनवायरनमेंट इज़ अ वेरी गुड फील्ड, दो इट्स अ लॉट ऑफ जॉब अवेलेबल, और एनवायरमेंटल साइंस भी अच्छी है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि जिसमें आप देखें कि बिजनेस. और दूसरी चीज़ ये है कि इट्स इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 nowadays. It's based on artificial intelligence. तो आप अगर फॉरेन की एजुकेशन देखें, फ्रॉम देयर बिगनिंग ऑफ देयर करियर और फ्रॉम देयर स्कूल दे लर्न द प्रोग्रामिंग. बट हमारे पास हार्डली स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में आके कंप्यूटर सीखते हैं, प्रोग्रामिंग सीखते हैं, एंड यू मस्ट हैव स्टडीड सम सब्जेक्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग टू. तो स्टूडेंट की फील्ड किसी में भी हो, आई वुड सजेस्ट देम प्राइवेटली आप टाइम स्पेयर करके ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं. अगर आप कोई अफोर्ड कर सकते हैं टाइम वाइज और इकोनॉमी वाइज कोई सेंटर को, वो ज्वाइन करें. यू मस्ट लर्न द प्रोग्रामिंग. तो प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर्स, दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स नाउ डेज. एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप देखेंगे कि अभी रिसर्चेस हो रही हैं. हमारे ग्रेजुएट्स थे 2017 बैच के, दे हैव डेवलप्ड अ माइक्रोस्कोप and they have developed an app. They was working on artificial intelligence. जो पहले आप बैक्टीरिया कल्चर करके लैब में एक लेंदी प्रोसेस करते थे, हमारे ही फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे मेहरान के. सो दे हैव डेवलप्ड अ माइक्रोस्कोप एंड दे were using artificial intelligence to identification of those species. Currently, there some student of my students, they are working on the development of smart dustbins. So, matlab, for my suggestion in this industrial revolution 4.0 era, if you don't know the programming, if you don't know the artificial intelligence, it is hard for you to stand uh, at a center point or at a point where the world can see. ठीक है बेटा. सो दो सजेशन है. एक तो आप मतलब समराइज ये करना चाहूँगा. एक तो आप यू मस्ट गो फॉर चूज एनी फील्ड, बस यू मस्ट नो कि इसको हम कमर्शलाइज कैसे कर सकते हैं, इसमें से बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या निकाल सकते हैं. दूसरी चीज़ है, यू मस्ट लर्न अबाउट सॉफ्ट स्किल्स एंड स्पेशली द कंप्यूटर स्किल्स. और उसमें स्पेशली आप क्या सीखेंगे, उसमें यू मस्ट लर्न अबाउट द प्रोग्रामिंग. C++ हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, जो आप इजीली
सीख सकते हैं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। और उसके बाद यू मस्ट फोकस और फ्रॉम बाय योरसेल्फ, ये आप वेट नहीं करेंगे आपको कोई टीचर आएगा, डॉक्टर यस आएंगे वो सिखाएंगे, या और कोई टीचर आएगा वो आपको सिखाएगा। नो, नोबडी इज गोइंग टू टीच यू दिस। तो ये चीज़ें आपका अपना करियर है, यू हैव टू बिल्ड योरसेल्फ। मार्क जुकरबर्ग को किसी ने नहीं कहा था कि आप अपने प्रोजेक्ट को कमर्शलाइज करें और अभी दुनिया के बिलियनियर्स में आ जाएं। एलन मस्क को किसने नहीं कहा था, किसी टीचर ने नहीं कहा था कि आप ईबे स्टार्ट करें और यू मस्ट गो। सो दैट इज माय सजेशन, एंड दैट इज ऑलवेज माय सजेशन टू माय एवरी स्टूडेंट कि आप जॉब के ये ना सोचेंगे जॉब मार्केट के, आप सोचेंगे आप पहली चीज़ है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपका फाइन आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो मैं आपको, और आपकी आर्ट्स अच्छी है, मतलब आपकी ड्राइंग अच्छी है, तो मैं आपको कहूँगा कि इंजीनियरिंग में आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। अगर आपका फोटोग्राफी का इंटरेस्ट है, वीडियो मेकिंग का इंटरेस्ट है, so I would suggest you should go for attend any school which teaching the photography, video making or this kind of thing। आप इंजीनियरिंग में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। सो जो आपका पैशन है उसको चूज करें, उसके बाद आप पैशन में देखें कि कौन सी फील्ड जो है आप को फ्यूचर ग्रोथ में हेल्प कर सकती है। जी बेटा, ओके। थैंक यू सो मच सर। एज वी हैव अ शॉर्ट टाइम, तो हम अपने एंड सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल माय गेस्ट स्पीकर्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पर होगा, और टाइमिंग जो है वो 8:30 होगी, 8:30 PM, एंड द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इज 10th August। So at this we are going to end our session. Thank you so much. Allah Hafiz and take care.